Jito Hyderabad Ladies Wing launches the Swayam project in the presence of our National Secretary Sarlaji Bhutodia. We have a team with us over here, the coordinator for Swayam, Manaliji Shrimal. We have with us the convener of Swayam, Sharmila Jain, Vice Chairperson Rekha Ji Kimti, Chief Secretary Tina Shah, Treasurer Anita Ranka, Joint Secretary Trishna Bamboli, Sports Convener Archana Lunawat, and as well as Advisor for Sports Renuka Charadia with us. Now we launch the Swayam project. Okay. स्वयं वर्टिकल आज लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। ये B2B रेफरल मीट्स के लिए किया गया है। ये अपने कम्युनिटी के बीच में बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी लेडीज आगे आके जो भी मांगोगे उन्हें मिलेगा। एम्पावर, पावर टू एम्पावर इज अ लोगो। This is basically for our women entrepreneurs who can do business among themselves and grow. मांगोगे तो मिलेगा। Swayam is a basic project where all the working women come together and grow together, catching each other's hand. सब मिल के बड़ो हो, सबका साथ सबका विकास, सेम यहाँ पर भी सब मिल के बड़ो हो। The working with us, with together to grow. Yeah, I am Sarla Bhutodia, National Secretary, and also I am heading Swayam at the national level. स्वयं एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है. इट्स नॉट ओनली अ प्रोजेक्ट बट इट इज़ अ project which will allow the women power to empower themselves, grow their businesses, maybe it a household businesses, maybe it their professional, maybe or any other business whatever they are working with. And it will not only be held at chapter levels, the chapter can interact with other chapters, they can go beyond the boundaries of their city, they can go beyond the boundaries of their zone, they can go up to national level for the networking of the business. This is the basic idea of Swayam. दोस्तों, पुराना साल जाने में बस कुछ ही दिन बाकी है, नया साल आने में भी कुछ ही दिन बाकी है. हमारे लिए नया साल न्यू रेजोल्यूशन लेकर आता है और बहुत सारी खुशियां लेकर आता है. तो आइए, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लेडीज यहाँ पे मौजूद है. 365 डेज हर दम लेडीज को काम ही रहता है. 365 दिन लेडीज को छुट्टी नहीं मिलती. बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को टिफिन बनना, आजकल हर क्षेत्र में लेडीज का भी दबदबा ज्यादा है. तो आइए हम महिलाओं से पूछते हैं कि नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपके रेजोल्यूशन क्या है. इस साल आप क्या करने वाले हैं कुछ नया. Hello, myself Tina Shah. My New Year resolution would be I just want to grow in my business. I have entered into various sectors now. I was previous year I was motivated, so I thought this year now I should get into action. With that motivation, I want to grow a lot in my business. Hi, I am Sarla Bhutodia. मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है सेल्फ लव एंड ग्रोथ एंड स्प्रेड लव. Mila Jain, this year I am going to plan for work on the core of everything, core on the self, core of the other business, core of the family, work on core of everything. Yeah. Good afternoon everybody. Trishna Bamboli. This year I am planning to spend more of my time with my family, with my kids and with all my fellow mates of Jito. Thank you. Myself Priyanka Jain, a home baker. This year, coming year, I want to be grow professionally and personally in life, and learn to be little more patient. And I want other women also to inspire who are not, who have enclosed themselves in a closed room and not coming out to do something. I want to motivate them also, inspire them also.
Hello, I'm Savita Lunawat. This year my resolution is to meditate and yoga daily because I've learned with Saurabh Bothra this time to daily practice yoga, alom vilom, everything. Thank you. नीता जैन, और मैं अगले साल के लिए यही कोशिश करूंगी कि बिजनेस में ग्रो करूं, मेरी फैमिली भी बिजनेस में और सब बात में ग्रो करे, एंड आई वांट जीतो टू बिकम वन स्टेप अप और ब्लॉसम करे जीतो। हेलो, दिस इज़ मनाली शिश्रीमाल। मेरी हमेशा कोशिश रही है, मेरी हमेशा ये विश रही है कि अगर मेरे वजह से किसी के चेहरे पे एक स्माइल भी आ जाए तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ये मेरा भाग्य होगा कि मैं किसी के काम आ सकी, मैं किसी के लिए कुछ कर सकी। दिस विल बी माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। थैंक यू। जैन, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आई हैव टू लव माई सेल्फ, बिकॉज इतने साल मैंने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ किया। ये साल से मेरे को मेरे खुद के लिए करना है, लाइक मेरी बॉडी, मेरी पर्सनैलिटी एंड माई फ्यूचर बिजनेस। सो मेरा खुद के लिए कुछ करना है मेरे को लाइफ में। मैम, कभी आपको ऐसा लगा कि आप में आपके और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो गया तो सास एंट्री करेगी तो वो किसका पक्ष लेगी, कभी ऐसा ट्विस्ट हुआ? 100% मेरा ही लेती है। Yes, there is no choice and she is very what to tell supportive and 100% वो मेरा ही साथ देती है। कभी ऐसे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, वो आधी रात को लेट से आए तो आप बाहर बेलन लेके आए क्या? I would like to tell this, मेरा हस्बैंड हमेशा ही comes every day at 12:30 and 1 o'clock। अगर जल्दी आ गए तो हम पूछते भाई जल्दी क्यों आए हो आप आज? Yeah, so he is always late. He is a doctor, so and he comes from clinic at by 12:30 and 1 o'clock. So that time is not new to us. नहीं, अभी न्यू ईयर आने वाला है तो हस्बैंड अब पार्टी में जाएंगे, दारू खाना पीना तो ये आम बात है। अगर हस्बैंड लेट से आए, आपको नए न्यू ईयर की पार्टी में नहीं ले गए तो झगड़ा चलेगा फिर? 100% वो तो चलेगा ही चलेगा, इसीलिए इस बार बाली लेके जा रहे फॉर न्यू ईयर। दोस्तों, तो यही होती है लाइफ के हंसी और खुशी से बिताना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो, सास हो या ननंद हो, वो सारे लोग आपके परिवार ही है। तो हंसते खेलते न्यू ईयर मनाइए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। प्रॉब्ली आई डोंट नो, अगर आप विंग के हिसाब से पूछ रहे हैं, लेडीज विंग्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली हैविंग मोर इवेंट्स इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी। लास्ट ईयर वी हैड अराउंड 400 प्लस इवेंट्स। दिस ईयर प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू क्रॉस 500 का इवेंट्स इन द ईयर ऑफ मतलब 2 years के टर्म में। पर्सनल रेजोल्यूशन प्रॉब्ली शुड बी टू हैव मोर डोनेशंस देन व्हाट वाज हैपन लास्ट ईयर। दैट्स इट। थैंक यू सर। सर, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? सी अपार्ट फ्रॉम, अगर आप जीतो तो छोड़ के अगर बात करते हैं, अगर मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन क्या है, सो आई एम ए ट्रैवल फ्रीक, सो आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन 2025 एज मच एज आई कैन, एंड मतलब घूमना फिरना मेरा शौक है। तो मेरा रेजोल्यूशन तो अभी यही है कि मैं जितना घूम सकूँ मैं उस साल के अंदर मैं घूमूँ, कीप हेल्दी माई सेल्फ, एंड जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आई ट्राई फॉर दैट। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है सर? मैम, लास्ट 2 साल मैंने फैमिली को बहुत टाइम दिया। अब अगले 2 साल मैं चाहता हूँ सिर्फ दोस्तों को ही टाइम दूँ, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, मतलब बेसिकली एंजॉय करूं। यही मेरा रेजोल्यूशन है। कभी पुराने साल में बीवी से चकपक हुई कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते, या कभी मामा से चकपक हुई कि तुम बीवी को ज्यादा टाइम देते, मुझे नहीं देते? सास बहू का कभी झगड़ा हुआ? आपने उसको कैसे सॉल्व किया? सास बहू का झगड़ा तो रहता ही मैम, तभी तो मजा है। अच्छा। कभी मम्मी को कभी बीवी को, दोनों को मनाने में ही मजा है, और होते ही रहते हैं झगड़े। तो सर, आप कैसे सॉल्व करते अगर माँ और बीवी में झगड़ा हो? तो आप चूज किसको करते और शांत किसको बिठाते? मैं चुपचाप घर से बाहर निकल जाता हूँ। ये सबसे अच्छा रेजोल्यूशन है। और जब तक वो गुस्सा आपस में ठंडा नहीं हो जाए, मैं जब तक घर पे नहीं आता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे आया तो उन दोनों झगड़ा छोड़ के मेरा चालू हो जाएगा, इसीलिए आई कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट वैसे तो क्या है, बोथ आर इक्वल टू मी, माई मॉम एंड माई वाइफ बोथ आर इक्वल टू मी, तो आई कैन नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ, क्या बोलते ना, किसी को एक तो पार्ट नहीं ले सकता हूँ मैं जी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि दोनों को बिठा के आपस में थोड़ी सी 15 साल से भारी है मैडम। सर, बहुत ही सेफली गेम प्ले करते, सुनिए आप लोग। बस मेरा तो यही है, अभी मेरी बीवी यहाँ पे बैठी है तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फिलहाल अगर यहाँ पे आप लोग पूछेंगे तो आई टेक माई साइड ऑफ माई वाइफ ओनली, क्योंकि वो एपिसोड ये देखेगी यार, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हाँ मैं उसके साइड में हूँ। मेरी मॉम ज़्यादा टीवी देखती नहीं है, तो इसके लिए मुझे उनका थोड़ा सा अभी डर कम है।
सर बहुत सेफली प्लान कर रहे हैं. थैंक यू सर. हैप्पी न्यू ईयर सर. Thank you so much. थैंक यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और बहुत ही खूबसूरत शख्स मौजूद है. तो सर से पूछेंगे, ये साल तो जाने वाला है, नया साल आने वाले में आप क्या नया करने वाले हैं और आपके रेजोल्यूशन क्या है? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन. मेरा रेजोल्यूशन है, आई वांट टू बी मोर एक्टिव, participate in more G2 events. As we are seeing, G2 Hyderabad is doing amazing events. G2 Youth Wing, Ladies Wing and the main wing, they are doing amazing events, and I wish all the best for the future and for the next year to be more amazing and be more entertaining. Thank you. सर आपके साथ कभी नया साल शुरू होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आइए हम जानते हैं. आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही उम्दा शख्स खड़े हैं और काफी स्मार्ट भी लग रहे हैं. तो आइए इनसे पूछते हैं जो नया साल आने वाला है उसमें ये लोग क्या क्या नए करने वाले हैं और इनका रेजोल्यूशन क्या है. Yeah, good afternoon. It's a great afternoon being with the G2 Ladies Wing. It has been an amazing event, so with all the girls, women participating in it. और आगे न्यू ईयर के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है सब गर्ल्स और वुमेन्स के लिए. बहुत ही अच्छा प्रमोशनल गेम है ये. सर नए साल को आपका और मोर events to come up with the ladies wing, with the G2 main wing and with the youth wing. So it will be an amazing year for 2025 coming year. Happy New Year to all. आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और बहुत ही खूबसूरत शख्स मौजूद है. तो सर से पूछेंगे, ये साल तो जाने वाला है, नया साल आने वाले में आप क्या नया करने वाले हैं और आपके रेजोल्यूशन क्या है? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन. मेरा रेजोल्यूशन है, आई वांट टू बी मोर एक्टिव, participate in more G2 events. As we are seeing, G2 Hyderabad is doing amazing events. G2 Youth Wing, Ladies Wing and the main wing, they are doing amazing events, and I wish all the best for the future and for the next year to be more amazing and be more entertaining. Thank you. सर आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि दोस्तों ने फोन किया, भाई न्यू ईयर की पार्टी है चलो, बीवी ने बोला नहीं नहीं जाना है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसा बीवी में कि भाई पार्टी के लिए दोस्त बुला रहे और आप जा नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे, क्या हल निकालेंगे उसका? अब देखो मेरे हाथ में तो मेरी बच्ची है, हम जा तो नहीं सकते बच्ची को छोड़ के, तो हम लोग घर पे ही पार्टी करेंगे. एंड आई विश एवरीवन टू बी हैव अ सेफ न्यू ईयर एंड एंजॉय अ लॉट. सर आप कैसे मनाएंगे न्यू ईयर? मैम पार्टी करने जाएंगे. अगर मिसेस ने मना किया, वो बेलन लेके खड़ी हो गई, तभी भी आप पार्टी करने जाएंगे? मिसेस के साथ ही जाएंगे मैम, और कोई सवाल उठता ही नहीं है. ये कहीं भी जाएंगे मिसेस को सेफ्टी के लिए लेके जाएंगे, पार्टी के लिए नहीं ले जाएंगे, मिसेस सेफ्टी है इसीलिए. डेफिनेटली उनके साथ रहेंगे, खुश रहेंगे. बीवी के साथ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे. बेस्ट है, घर पे रहो, हाउस पार्टी करो, एंजॉय करो, कुछ देने की टेंशन है नहीं, एंजॉय करो बस. मैम लेकिन इनका प्लान तो ये है कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रताड़ित पुरुष है, बाहर जाना चाहते लेकिन बीवी का खौफ है. तो आप देख सकते हैं ये प्यार भी है और महिलाओं का खौफ भी है. बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग अपनी अर्धांगिनी की इतनी इज्जत करते हैं. ऐसे ही महापुरुष अगर देश में रहेंगे तो नारी का आगे बढ़ना कोई नहीं रोक सकता. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर बोल. हैप्पी न्यू ईयर. प्रॉब्ली आई डोंट नो, अगर आप विंग के हिसाब से पूछ रहे हैं, लेडीज विंग्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली हैविंग मोर इवेंट्स इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी. लास्ट ईयर वी हैड अराउंड 400 प्लस इवेंट्स. दिस ईयर प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू क्रॉस 500 का इवेंट्स इन द ईयर ऑफ 2, मतलब 2 years के टर्म में. पर्सनल रेजोल्यूशन probably should be to have more donations than what was happened last year. That's it. थैंक यू सर. सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? सी अपार्ट फ्रॉम, अगर आप जीतो को छोड़ के अगर बात करते हैं, अगर मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन क्या है, सो आई एम ए ट्रैवल फ्रीक. सो आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन 2025 एज मच एज आई कैन. एंड मतलब घूमना फिरना मेरा शौक है, तो मेरा रेजोल्यूशन तो अभी यही है कि मैं जितना घूम सकूँ मैं उस साल के अंदर मैं घूमूँ. कीप हेल्दी माई सेल्फ एंड जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आई ट्राई फॉर दैट. हेलो सर. हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन. आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है सर? मैम लास्ट 2 साल मैंने फैमिली को बहुत टाइम दिया, अब अगले 2 साल मैं चाहता हूँ सिर्फ दोस्तों को ही टाइम दूँ, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, मतलब बेसिकली एंजॉय करूं. यही मेरा रेजोल्यूशन है.
कभी पुराने साल में बीवी से चकपक हुई कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते, या कभी मामा से चकपक हुई कि तुम बीवी को ज्यादा टाइम देते मुझे नहीं देते? सास बहू का कभी झगड़ा हुआ, आपने उसको कैसे सॉल्व किया? सास बहू का झगड़ा तो रहता ही मैम, तभी तो मजा है। अच्छा, कभी मम्मी को कभी बीवी को, दोनों को मनाने में ही मजा है। और होते ही रहते हैं झगड़े तो। सर आप कैसे सॉल्व करते? अगर माँ और बीवी में झगड़ा हो तो आप चूज किसको करते और शांत किसको बिठाते? मैं चुपचाप घर से बाहर निकल जाता हूँ ये सबसे अच्छा रेजोल्यूशन है। और जब तक वो गुस्सा आपस में ठंडा नहीं हो जाए, मैं जब तक घर पे नहीं आता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे आया तो उन दोनों झगड़ा छोड़ के मेरा चालू हो जाएगा, इसीलिए आई कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट वैसे तो क्या है, बोथ आर इक्वल टू मी, माई मॉम एंड माई वाइफ बोथ आर इक्वल टू मी, तो आई कैन नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ, क्या बोलते ना, किसी को एक तो पार्ट नहीं ले सकता हूँ मैं जी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि दोनों को बिठा के आपस में थोड़ी सी 15 साल से भारी है मैडम इन। सर बहुत ही सेफली गेम प्ले करते, सुनिए आप लोग। बस मेरा तो यही है, अभी मेरी बीवी यहाँ पे बैठी है तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि मैं फिलहाल अगर यहाँ पे आप लोग पूछेंगे तो आई टेक माई साइड ऑफ माई वाइफ ओनली क्योंकि वो एपिसोड ये देखेगी यार, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हाँ मैं उसके साइड में हूँ। मेरी मॉम ज़्यादा टीवी देखती नहीं है, तो इसके लिए मुझे उनका थोड़ा सा अभी डर कम है। सर बहुत सेफली प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी। मैं शालीबार जायसवाल अहमद कैमरामैन के साथ।